Yeah. Let us all sit in any comfortable meditative posture. Spine, neck, head in one line. Shoulders and buttocks are in one line. We will be doing Om 3 times. O will be longer, louder, and clearer, followed by prayer to Rishi Patanjali and Guru. Inhale. 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 योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगन्नाथ मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं पूजा कुरु
Purpadam Mantramulam Guru Pravakyam Mokshamulam Guru Kripa Mokshamulam Guru Kripa Mokshamulam Guru Kripa. Put your hands by your side. Inhaling. Take your hands up. Inhale. Stretch. And with exhalation, come forward and bow down to Adi Guru Shiva, Jagat Guru, Shri Krishna, your Nija Guru, your personal Guru, and to all the Rishis, Munis, Maharshis, Acharyas, Siddhas, and Sadhakas. To all the luminaries who have reached the highest, simplified the path for us, again gave it back to us, came down, and now helping us to walk higher and higher. And so they are holding our hand and taking us to the highest. And so connect to them, remain with them, and reach to the highest in this very life itself. And so with inhalation, slowly come up with the confidence, conviction that yes, I deserve the best and I will attain the best in this very life itself. Bring your hands down if you have taken it up. Namo Namaha. Namo Namaha. Congratulations to reach the peak of the course. And so definitely we will reach to the peak of our destinations, what we want to reach. We will attain the knowledge, the wisdom our rishis, our ancestors, our parents wanted us to attain. Have confidence. यहाँ तक आए हैं तो वहां तक तो बस पहुंचेंगे ही, right? Correct. Okay, so today I don't have to say much. Whatever questions you have, you ask. Okay? According to that, I will ask you. Well, if you have gone through the syllabus in practical, we have done everything, whatever given in the practical list. Correct? Did revision 2-3 times also. More than that, now we were bored. Right? बहुत हो गया है. We know it. We know it very well. Okay, the way you know it, the way you are doing it in the practical, exactly like that, you continue practicing every day, twice a week, once a week, if nothing else. And I'm sure you will not miss out a single mark. Yes, follow all that systems, instructions given by your teachers. Okay. Yes, have faith in yourself. Have faith what you felt, what you experienced in the practical class as well as theory class. Please do not depend on other person's knowledge. And go accordingly. You will get full marks, full confidence, and you will be thorough with it. Okay? Yes. We have done everything in detail in practical, exactly like that. We have done everything in theory also. Have you checked with the theory list also? In syllabus, did we miss out on anything? We didn't.
right? Though in our syllabus, it is not given in a very systematic way, but we made it systematic and we have given it, correct? And so we have covered every possible topic, more than that, correct? So it is done. So practical done, theory done. In project also, you still have little time, right? How many days you have in your hands? 7 days, 1 week. 1 week you have, right? Yes, 1 more week you have. So in that, whatever you need to add, do, you can do it. Okay. And at the end only, last stage only, you put all your papers together, scan it, make PDF, and then send it to the email ID. It's simple. That is the simplest job. Before that, you prepare whatever you want to prepare. Okay. In project, if by chance still somebody is not clear, you can ask me the question. So in practical, in theory, as well as in project, or how we will be conducting the exam. Okay. Ask. Should. Yes. Since morning till 12 night. On 8, morning till 12 night, that is we count as 8. Okay. Yeah, you can send earlier also. If by chance you have finished today, you can start sending it today. Okay. I have no problem. You can start sending it right now also. Okay. But latest by 8, you should send me 8 night. Okay. Done. Yes, Meera Nani ji, start. मैम थोड़ा प्रतिपक्ष भावना में थोड़ा डाउट था, प्लीज थियरी में मतलब टॉपिक के बारे में कोई डाउट है तो अगले हफ्ते हम पूरा रिवीजन करेंगे। पूरा रिवीजन मतलब इसलिए आज प्रैक्टिकल का लास्ट क्लास रखा और आज रिवीजन नहीं रखा, क्योंकि अगर आज रिवीजन रखते तो प्रैक्टिकल के बाद रिवीजन रखना पड़ता। 2 घंटे में हमारा रिवीजन खत्म नहीं होता, फिर आधा आज आधा बाद में करने में वो फिर वो मूड नहीं आता है, वो पूरा कंप्लीट वो नहीं लगता है कि हाँ हमारा पूरा हुआ। इसलिए नेक्स्ट सैटरडे पूरा रिवीजन होगा हर एक टॉपिक का। ओके, हर एक टॉपिक। सो उसमें वो वाला बात भी हमें मिल जाए। ठीक है, ओके। अगर प्रतिपक्ष भावना अभी आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है या ऐसा कुछ है, एक्चुअली वो 2 दफे हुआ, मैंने भी किया और तन्वी मैम ने भी उसको टच किया था, राइट? करेक्ट। सो यस, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। आई हैव नॉट टेकन द रिकॉर्डिंग्स आउट व्हिच आई वाज सपोज्ड टू। I was supposed to give recordings only for 2 weeks. I have not done that, right? In the beginning, I tried to train you all with that, but unnecessary. There was, so much of Runa Dhona and all, which was not necessary. It is your duty to download or learn or make your notes out of it in the same week itself. बाहर कहीं कोई मिलता नहीं इतनी देर तक, correct? But we have given, and then I have taken it कि भाई चलो ठीक है, if they want it, keep it till the exam. Okay, so I kept it. So you still have the recordings with you. You can go through the recordings now. Correct? Once again go through. 2-3 दफे आप सुनोगे, अपने आप समझ में आ जाए। और फिर भी नहीं समझ में आया तो वो कंसेप्ट इस ये जन्म में हमारे लिए नहीं है, या तो इस वक्त हमारे लिए नहीं है, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में अपने आप समझ में आने लगे। ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट हमें नहीं समझ में आता था, राइट? फिर हम लोग 2, 4, 5 साल और बड़े हो जाते, फिर हमें लगता है अरे उसमें क्या रखा था, एकदम सिंपल तो है, कितना अच्छा है, कितना समझने वाली बात है, आराम से समझ में आ गया। तो कोई कंसेप्ट के लिए ऐसा होता है, करेक्ट? अगर बाई चांस हुआ है तो। और फिर भी यू हैव रिकॉर्डिंग्स, गो थ्रू इट, एंड वी विल बी डूइंग ऑल द टॉपिक्स. Yes, start to end all the topics in revision class. Okay? Yes. Any other question? You are happy, Meera Rani ji? Satisfied? Very good. Yes. Any other person? Any other question? I mean? अरे वाह, अब तो मैं जल्दी खाना खा सकूंगी। Yes, नेहा जी बोलिए। मैम मैं हैंड रिटन कर रही हूँ, प्रोजेक्ट हिंदी में लिख रही हूँ और उसको फिर टाइपिंग नहीं करवाऊंगी, तो फिर जो आपने जो नॉर्म्स लिखे हैं टाइपिंग के वो सारे वो मतलब उसमें भी फॉलो होंगे क्या, फॉन्ट साइज एंड वो सब? ना उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि आप टाइम्स रोमन में कैसे लिखेंगे? हाँ, हैंड रिटन में नो। हाँ, उसमें A4 साइज के पेज लेना प्लीज, एकदम छोटे छोटे पेज मत लेना। बुक में से कोई लोग करते हैं इसलिए मेरे को वापस रिपीट करना पड़ता है। कोई लोग पेज बुक में से कोई
नोटबुक के इधर उधर के वो फाड़ के वो ऐसे लेते हैं. नो, प्लीज टेक A4 size paper, write down in a clear handwriting, and then you can send it. Yes, you can give it in Hindi, of course, English, Hindi, Marathi, and Gujarati. Any of these 4 languages. But please do not do Vaman Dhoti. Please do not make bhelpuri, pani pav bhaji, या etc. out of it. कि एक आध 2 पैराग्राफ हिंदी में लिखा, एक आध 2 गुजराती में लिखा, एक आध 2 इधर उधर से ढूंढ करके चिपकाना है इसलिए इंग्लिश में लिखा. नो. यस, I allowed, I mentioned earlier also, again I am mentioning it, that if by chance you get a quote, some quote, स्वामी शिवानंद जी का कोट मिला है या स्वामी विवेकानंद का कोट मिला है, और वो अगर आपको इंग्लिश में मिला है और आप हिंदी में लिख रहे हो, तो वो वाला कोट एज इट इज लिख सकते हैं. पर एक कोट होता है, वो 2 लाइन का होता है या 3 लाइन का होता है, लेकिन पैराग्राफ से पैराग्राफ पूरा पूरा ढाप नहीं सकते हैं. राइट? सो कोट्स अलाउड है. अगर हम लोग कहीं पे लिखते हैं, अगर संस्कृत का कोई कोट है या हिंदी का कोई कोट है या इंग्लिश का या गुजराती का, कोई गुजराती की पोएम्स अगर हमें आती है हमारे टॉपिक के रिलेटेड, बहुत दफे हम लोग ने नरसिंह मेहता की और बहुत सारे लोगों की मेंशन की है, और अगर हमारे टॉपिक के रिलेट जाती है तो यू कैन डेफिनेटली पुट इट. राइट? ओके. और मैम मैं एक एक लाइन छोड़ के लिख रही हूँ ताकि आप क्लियरली पढ़ सको, इसलिए मैं एक लाइन छोड़ के लिख रही हूँ. तो हो सकता है Okay, then see to it that you know how many lines you are covering. अगर usually A4 size में 30 lines होती है generally. ओके. So आपकी सिर्फ 15 लाइन हो जाएगा. हाँ. करेक्ट? और अगर 15 लाइन हो जाता है तो थोड़ा फिर आपका प्रोजेक्ट उस हिसाब से लंबा हो जाएगा. यस, तो पेजेस बढ़ जाए या थोड़े पेजेस बढ़ जाएंगे उस हिसाब से. मैं इसलिए that I can understand. ओके मैम. ओके. ओके. या फिर एकदम छोटे छोटे हैंड राइटिंग भी नहीं, बड़े बड़े भी नहीं. वो अगर आपके हैंड राइटिंग उस हिसाब से है, बहुत बड़े हैंड राइटिंग है बाय चांस, और ऐसे स्नेहा जी की तरह अगर 1 लाइन छोड़ करके लिख रहे हैं आप, तो प्लीज सी टू इट दैट उस हिसाब से आप आपका जजमेंट लगाए और उस हिसाब से आप करिएगा. ठीक है? उतना जजमेंट हम भी समझ सकते हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे भाई 25 बोले थे आपको 20-25 हाँ 20-25 बोले थे, उसके बदले में आपके 35-40 पेजेस क्यों हो गए? सीधे 50 नहीं होंगे स्नेहा जी, आई अंडरस्टैंड. हाँ, वो 5-10 ही बढ़ते हैं और ज्यादा नहीं बढ़ते. ठीक है. तो मैम ऐसा चलेगा? थैंक यू. मैम ऐसा चलेगा? बहुत क्लियरली दिख नहीं रहा है लेकिन चलेगा. आपके वर्ड्स मुझे लगता है लेटर्स, हैंडराइटिंग बहुत रिलेबल है, सो डोंट वरी. अगर आपने लाइन नहीं छोड़ी है नो प्रॉब्लम. अगर छोड़ी है, वो अपना हर एक लोगों का अपना होता है, अपना एक सिस्टम होता है टू प्रेजेंट. बहुत सारे मेरे हमारे एक स्टूडेंट थे और वो अपनी जो पतंजलि योग सूत्र वाली जो बुक है ना, उसके लिए वो टाइप करते थे, और वो मोक्ष मार्ग वाली जो बुक है उन्होंने डिजाइन की थी. तो उन्होंने इट इज हिज स्टाइल, वो सब कुछ एकदम पास में लिख करके एकदम छोटी सी बुक बनाई अपनी 100 पेज की. वो जो स्कूल में हम लोग लिखते थे ना, इतनी वाली छोटी सी बुक बना करके मेरे को बोले कितनी क्यूट है मैम. यस क्यूट थी. मैंने बोला लेकिन मेरे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है भाई, मैं ऐसे आई ग्लास लेकर के थोड़ी पढ़ूंगी. प्लीज राइट एवरीथिंग खुला खुला, बिकॉज आई लाइक टू राइट खुला खुला. यू मस्ट हैव सीन द नोट्स. क्यों? अगर खुला खुला लिख रहे हैं तो बीच में घुसा करके कुछ लिखेंगे बाद में. that is how I write notes. That is how I think. And जब भी कभी मेरी बुक होती है या कुछ और भी होता है, I like to write clear, readable. उतना सिर्फ देखने के बाद में वो विजुअल मेमोरी में जाना चाहिए, क्योंकि मेरी विजुअल मेमोरी है. So I think it my way. कि किसी को अगर नजर में भी आ गया है ना, तो वो वाले शब्द उनके दिमाग में रहेंगे, उनके आंख के सामने जब वो पेपर लिख रहे हैं या कहीं पे यूज कर रहे हैं तो उनके सामने रिफ्लेक्ट होंगे. So that is my understanding, and so I write it like that. There are so many other people, they like to do it in a different way, so no problem. Project representation is your own creativity, and आपकी जो sensibility है, आपका जो aesthetics है, उस हिसाब से कर सकते हैं. लेकिन हाँ, मैंने ये वाला वमन धोती शब्द भी इसलिए यूज किया, और मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि one of our students, he has not done this to me, but he told me कि मैंने ऐसे डिप्लोमा में किया था. तब डिप्लोमा में हैंडल नहीं करती थी. मेरे को कहा था कि वो मैम ने मेरे को बहुत ही परेशान किया था और वमन धोती के लिए बहुत ही परेशान किया था. उसने वमन धोती पे ही वो कुछ तब अलग अलग टॉपिक देते थे, प्रोजेक्ट किया था, असाइनमेंट किया था, और उसने हर एक शब्द, अगर एक शब्द में पॉसिबल शब्द है अगर, तो POSSIBLE, each and every letter he has written in a different color. Can you imagine? And how it will look? The whole assignment he may have went. बोले क्यों बदला? Revenge.
हाँ, अभी उसको उसको वो अच्छा भी लगा, बोले कितना सुंदर लग रहा है, एग्जैक्टली वुमन धोती लग रहा था वो, कलरफुल थिंग, आई मीन ही डिड इट एंड वो टीचर हैज नथिंग टू डू। सो प्लीज आपकी सेंसिबिलिटी आप फॉलो करना, बट यस अंडरस्टैंड कि उसकी वजह से आपके मार्क्स में क्या होता, वो असाइनमेंट के मार्क्स नहीं हुआ करते थे तब। हाँ, तो उसको फेल नहीं किया गया, लेकिन हाँ वो टीचर ने ध्यान रखा, उसका प्रैक्टिकल में मार्क काटा था। खैर हमारे इसमें वो प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, लेकिन आई वाज गिविंग दिस एग्जांपल सिंपली बिकॉज टू अंडरस्टैंड everybody has their own sensibility, but when it comes to project everybody would like to present it the best way, right? Correct. And so please take it your way, we are fine with whatever way you are choosing. Correct. Yes, yes you can नहीं पावर पॉइंट पे नहीं, MS वर्ड्स फाइन, पावर पॉइंट पे नहीं, बिकॉज पावर पॉइंट में अगर करते हैं तो हार्डली 5-5 6-6 लाइन एक पेज पे आती है, और फिर उसका अगर आप प्रिंट आउट लेते हो या ऐसे कुछ देते हो या तो उसकी ही कलरफुल स्लाइड्स ही देते हो, तो आप 50 स्लाइड बनाएंगे लेकिन उसमें मटेरियल कुछ भी नहीं आएगा आपका। You will not be able to express what you want to express in PowerPoint. PowerPoint is basically used to give lectures. वो भी वो लोगों के लिए, वो टीचर्स के लिए, वो लोग पॉइंटर्स जो लोग भूल जाते हैं, इसलिए 10 पॉइंटर दे देते हैं, फिर उसके ऊपर गोल 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 घुमाते रहते हैं, जैसे हिंदी में मूवी में झाड़ के आजू बाजू में घूमते रहते हैं, वैसे वो लोग ये पॉइंट्स के पीछे घूमते रहते हैं। सो बेसिकली पावर पॉइंट इज टू गिव अ वेरी एफिशिएंट वेरी गुड लेक्चर, but it is not good for our project thing. Okay, so please do not write it in PowerPoint presentation. Got it, Geetaji? It was your question, Geetaji? Whose question it was? No, sorry, I didn't read whose question it was. Okay, yes. Any other question? Yes, Sarika ji, बोलिए। सारिका जी क्वेश्चन छोटा रखेगा। या सारिका? ओके, सारिका थोड़ा कहीं लगता है। एनीबडी एल्स? एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, वेरी नाइस। Yes ma'am, I can speak now. या Hello. बोलिए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन प्रोजेक्ट का टॉपिक रिलेटेड है। Am I audible मैम? या नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ, सो मेरा क्वेश्चन प्रोजेक्ट के टॉपिक रिलेटेड है। सो मैंने टॉपिक चूज किया है यम नियम, तो वो चूज कर सकते हैं ना? यस यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मैं जब बोली थी उसमें भी मैं बोली थी। हाँ मैम, आपने एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल आई हैव डाउट, सो जस्ट वांटेड टू क्लियर विथ यू। डाउट? आप योगा प्रैक्टिकल नहीं करते हो अच्छे से, डू इट। ओके ओके। हाँ, एंड वन मोर क्वेश्चन मैम। सो इंट्रोडक्शन में मैंने यम नियम क्यों चूज किया, वो मेरे मन से मैं लिख सकती हूँ ना कि हाँ मुझे ये थॉट आया। पूरा प्रोजेक्ट आप आपके मन से लिख सकते हो, सिर्फ हमें जरूरत पड़ती है थोड़े थोड़े वो क्लेरिफिकेशंस के लिए, उसके लिए हम कोई ना कोई बुक थ्रू जा सकते हैं, यू नो, फॉर क्लैरिटी कि भाई यम का मीनिंग क्या है या नियम का मीनिंग क्या है या ये क्या है वो क्या है। अदरवाइज पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप आपके मन से लिख सकते हो, उसके लिए आपको ना कोई लिंक्स की जरूरत है ना कोई और चीजों की जरूरत है। बराबर, प्रोजेक्ट आपका है, आप जो समझते हो वैसे लिख सकते हो। खैर चारवाक इज नॉट अवर टॉपिक, षड दर्शना हम लोग टॉपिक में नहीं लिए हैं, इसलिए अगर किसी को लगे कि चारवाक इज द बेस्ट फिलोसोफर एंड आई वांट टू फॉलो इट, एंड अगर उसके ऊपर लिखता है कोई बंदा, तो वी हैव नो इश्यू बिकॉज इट इज योर अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। सो इन गिवन टॉपिक, आपका टॉपिक है माय फेवरेट कंसेप्ट फ्रॉम पतंजलि योग सूत्र डैश 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 की जगह पे आपको आपका जो कॉन्सेप्ट चुना है आपने, वो आपको लिखना है। सो माय फेवरेट कंसेप्ट सारिका फॉर यू इज माय फेवरेट कंसेप्ट फ्रॉम पतंजलि योग सूत्र डैश 2 डॉट, उसके बाद में आएगा यम नियम। करेक्ट। एंड सो इन योर इंट्रोडक्शन यू कैन एक्सप्लेन व्हाई यू हैव टेकन इट, व्हाट इज यम नियम फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन यू नो व्हाटएवर। करेक्ट। यस मैम। एंड वो सपोज चैप्टर्स लिख रही हूँ यम नियम पे मैं आगे, तो उस चैप्टर्स में मैं डे टू डे लाइफ में यम कैसे फॉलो कर रहे हैं, मतलब किधर करना चाहिए, वो सब इंक्लूड कर सकती हूँ। करेक्ट? 100% आप कर सकते हैं। यस मैम, सो वही क्लियर करना था। आप आपके प्रोजेक्ट के 10 चैप्टर भी कर सकते हो, यम में अहिंसा पे एक, सत्य पे एक, अस्तेय पे एक, वो भी कर सकते हो, या तो
मेन 2 टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद में, एक्नॉलेजमेंट के बाद में पूरे यम, और उसमें अगर यम आपका थर्ड टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड चैप्टर है, तो थर्ड ए, अहिंसा, थर्ड बी, ऐसे भी आप चैप्टराइजेशन कर सकते हो. गॉट इट? यस, Yes, ma'am. Very clear now. Thank you very much. माय प्लेजर. थैंक यू. यस शुभांगी, बोलिए. या शुभांगी. मैंने अष्टांग योगा में नियम के बारे में मैं लिख रही हूँ. ओके. तो फिर उसका डे टू डे लाइफ में क्या है वो भी लिखना पड़ेगा ना मुझे एंड में? पढ़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं. ओके ओके. करेक्ट. कि हाउ यम नियम और हाउ नियमा helps in our day-to-day things. So that is your version, and you can write it as one chapter. के niyamas, following niyamas in day-to-day life, or how we can follow niyamas in day-to-day lives. You can write it as a chapter also, or not as a separate chapter. वो लिखा हुआ है, उसके नीचे हर एक में एक अलग से पैराग्राफ करके day-to-day life how you can use it, वो भी वहां पे भी कर सकते. Definitely. ओके ओके. थैंक यू मैम. My pleasure. Yes, Kanchan, बोलिए. You are unaudible, not audible. You are on mute. Unmute yourself. Unmute yourself, Kanchan. अच्छा, तब तक मैं अमृता को ले लूं, किसको बुला के करा. हाँ, अच्छा, हो गया, आ गए कोई. यस मैम. हाँ, बोलिए कंचन. मैंने भी यम नियम ही टॉपिक चूज किया है और हैंड रिटन कर रही हूँ. तो ऑलमोस्ट सारिका जी ने ऐसे बोला ना कि उसका और मेरा ऑलमोस्ट सेम हो. दोनों साथ में मिलके प्रोजेक्ट मत करना. नहीं, वो अलग है. तो ठीक है. मैं हैंड रिटन कर रही हूँ, तो ये ऐसे ये वाला चलेगा ना, ऐसे प्रोजेक्ट चलेगा, 100% चलेगा. ओके ओके ओके. थैंक यू मैम. माय प्लेजर. या अमृता, बोलिए. मैम, अनित्य भावना और प्रतिपक्ष भावना पे भी कर सकते हैं ना प्रोजेक्ट? कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी वजह वो दोनों टॉपिक है, वो बहुत छोटे हो जाएंगे आपके. हाँ, छोटे वही सोच रही थी. तो इतना मटेरियल कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा है मैम. हाँ, अगर आप सिर्फ भावनास करते हो तो उसमें अगर आप मैत्री करुणा वाला पण आप ऐड करते हो, लेकिन फिर भी इतना 25 पेज करना मुश्किल हो जाएगा आपका. इसीलिए जब हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो उसमें मैंने वो भी बताया था कि कोई टॉपिक हमें बहुत पसंद है, लेकिन देन वी हैव टू सी दैट हाउ मेनी पेजेस आई कैन राइट. एटलीस्ट मिनिमम 25 पेजेस तो वी विल नीड टू राइट. यस यस. चुंगम की तरह उसको खींचेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा. राइट. करेक्ट. आप है ना, हम लोग ने जितनी भी 3-4 भावनाएं की, वो सारी एक साथ में सारे भावनास ऐसे करके टॉपिक चूज करें, फिर भी वो इतना मटेरियल नहीं होगा आपके पास. ओके मैम. तो इसीलिए चूज समथिंग एल्स. ओके मैम. यस गीता जी, बोलिए. या मैम, लाइन चार्ट्स अगर यूज करते हैं तो वो क्या पेज काउंट में इंक्लूडेड रहेगा या फिर उसे मैंने उस दिन बोला था, प्लीज पुट द चार्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड. ओके, so when you are putting the charts, don't write anything under it, so it will be counted as extra page, left side page. Got it? Okay. या मैम. और अगर आपको नंबर देना है आपके याद के लिए, सो अगर थर्ड पेज पे वो आ रहा है तो उसको थर्ड पेज नंबर मत दीजिए, 2A या 2B. B मीन्स इसलिए बैक. सो सेकंड पेज पूरा राइट साइड आप लिख रहे हैं. Right. और सेकंड के पीछे आता है. करेक्ट. सेकंड के पीछे, इसलिए वो बैक साइड हुआ, तो 2B लिख लीजिए. तो आपको याद रहेगा कि ये मेरे को सीक्वेंस में कहाँ घुसाना है. मैम, सो आपके लिए भी वो इजी रहना चाहिए. एंड ऑल दैट चार्ट्स, या तो फिर अगर आप चार्ट्स खुद नहीं ड्रॉ किए हैं, आपने कहीं से इंटरनेट पे से कोई फोटो लिया है या कोई चार्ट का फोटो लिया है, स्कैन किया है उसको और वो लगाना चाह रहे हैं, सो ऑल दैट विल बी काउंटेड ऑन द लेफ्ट साइड. ओके. या मैम, वन मोर थिंग. जैसे हम सब टॉपिक्स अगर आता है किसी टॉपिक के अंदर और वो नेक्स्ट पेज में हार्डली फ्यू लाइंस जा रहे हैं, तो वहां हमें फिर उस पेज में ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नेक्स्ट पेज में जाना चाहिए? वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपका, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो लिव इट लाइक दैट. ओके, डोंट स्टार्ट राइटिंग द चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम देयर. अगर समझ लो आपने यम लिया है फॉर एग्जाम्पल, ओके, और अहिंसा आपका
खत्म हुआ जो पेज पे, वहां पे 2 या 3 लाइन ही यूज की है, और उसके नीचे नंबर 2 अहिंसा फिर सत्य लिखना है, तो आप वहां से शुरू कर रहे हो। लेकिन पूरा यम कंप्लीट हुआ है और 2 लाइन हुआ है और फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है नियम, फॉर एग्जाम्पल, देन गो टू द अनदर पेज। ओके ओके मैम, वन लास्ट क्वेश्चन मैम। हाँ, आराम से, पूरा 1 घंटा है हमारे पास क्वेश्चंस के लिए। ओके मैम Yes. मुझे थोड़ा डाउट है, वो असंप्रज्ञाता समाधि जो है, मैंने जो टॉपिक चूज किया है उसके अंदर वो आ भी रहा है, तो वो मैम थोड़ा मुझे डाउट आ रहा है कि उसमें मुझे क्या ये समझना चाहिए कि जब वो ट्रेसेस ऑफ संस्कार वो भी जब खत्म हो जाता है तब फिर आता पर्सनली है। मुझे मैसेज करिएगा, आई विल गाइड यू फॉर दैट। आपका मेन टॉपिक अलग है, राइट? असंप्रज्ञात समाधि टॉपिक नहीं है आपका, शायद समाधि होगा टॉपिक, या जो भी कोई टॉपिक है उसमें रेफरेंस आ रहा है, राइट? मैम अभ्यास वैराग्य ईश्वर प्रणिधान है मेरा Okay, टॉपिक, no problem. वैराग्य के अंदर वो। हाँ, तो उसमें अगर असंप्रज्ञात समाधि का रेफरेंस आ रहा है और उसमें अगर आप कंफ्यूज्ड है, आस्क मी पर्सनली, आई विल गाइड यू कहाँ पे अटकते हो, क्या है, या हाउ यू कैन टेक इट, डेफिनेटली। Okay, ma'am, thank यू you. कैन सेंड मी द मैसेज, आई विल रिप्लाई। अभी मैं Thank थोड़ी you. फ्री हूँ, मतलब फ्री हूँ मतलब वैसे फ्री नहीं हूँ, लेकिन लास्ट वीक जितना बिजी थी उतना अभी नहीं हूँ। आई विल बी एबल टू, मैंने बहुत सारे लोगों के फोन नहीं उठाए हैं, मैसेजेस के रिप्लाई नहीं किए ऑब्वियसली, सो नाउ डोंट वरी। हाँ, लेकिन एवरीबडी डोंट स्टार्ट। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, आज ही क्लियर करो। उनको जिन जिनको मैंने बोला है मुझे मैसेज करना, वही लोग मुझे मैसेज करना। यस नेहल। मैम Ma'am, I have chosen the topic pranayam. ओके Okay, so ma'am, why I have choose this topic of favorite, जो आपका introduction में compulsory लिखना है, और I can write in the summary at the last page. यस, It's a compulsory to write in the introduction. see, it is not compulsory, but when it comes in the introduction, then the introduction generally, or that is the best way to express why you have chosen and what exactly pranayam topic means in gist, in short. That Okay. we are supposed to write in introduction. At the same time, in conclusion also it comes. Whatever you have written in the whole project, that comes in the conclusion in the nutshell. Okay. Correct? So that's why it's not like compulsory, but that is how, you can give your project a complete look. Otherwise, Okay. सब लोग बोलेंगे क्या लिखा है? There is no connection only. कुछ conclusion में कुछ नहीं है. Yeah, and that of course we see, because that's how we explain, that's how project is supposed to be. If somebody miss out on that affects their marks. बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे मैंने तो बहुत ही अच्छा लिखा है, लेकिन बहुत ही अच्छा लिखा है, लेकिन कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, कहीं से कुछ घुसाया है, कहीं से कुछ घुसाया है, कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए मार्क्स मिलते हैं। लोग को फेल नहीं करते हैं, मेहनत किया है तो हम लोग देते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी को हाईएस्ट मार्क मिलते हैं, अगर किसी को ज्यादा मार्क मिलते हैं, उसका मतलब क्या है? उन्होंने ये सारी बातों का ध्यान रखा, दैट्स ऑल। लेकिन एवरीबडी इज नॉट कमिंग फर्स्ट, राइट? Everybody is not failing also. Exactly like that's how it happens. How we are, whatever we are giving our best. And so leave the rest on Almighty. But yes, introduction has to be there, conclusion has to be there. That gives you complete look of your project. Right? Okay. Yes, ma'am. Happy? Yeah. Thank you, ma'am. Welcome. Yes, Rajesh ma'am. ji. Yeah, then Rashida ji, then Shilpa. Okay? I'm going in whatever, sequence you all are appearing on my screen. Yes, Rajesh ji. गुड मॉर्निंग मैम। गुड Yeah, मॉर्निंग हाथ मैम। नीचे कर दो। हाँ, yes, yes, मैम, Rajesh ji. मैंने अंतराया और सहबुआ एक साथ में लिया है टॉपिक, वो चलेगा ना मैम? कि सिर्फ अंतराया अंतरायण लेना है? सहबुआ, यस मैम। परफेक्ट, चलेगा, बेस्ट, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, वेलकम। या रशीदा जी बोलिए। I have chosen the topic Chittavritti Nirodha. Will वेरी that, नाइस, it's okay na? यस Right. यस, वेरी नाइस, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। या शिल्पा बोलिए। मैम, जैसे आपने बोला लेफ्ट साइड पे चार्ट्स होगा और राइट साइड पे कंटेंट, तो पीडीएफ क्या बुक फॉर्मेट में बनाना है क्या हमें? पीडीएफ में क्या है, Right. सीक्वेंस में आप स्कैन कर रहे हो, राइट? हाँ, हाँ, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो इसलिए तो मैंने कहा कि जो बैक साइड पे है या तो वो जो लेफ्ट साइड पे है उसको भी कोई ना कोई नंबर दो कि आप लोग सीक्वेंस में भूल ना जाओ, उसको कंफ्यूजन ना हो। सीक्वेंस में ही रहेगा, बस वी आर कंसिडरिंग कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। हाँ हाँ,
इसलिए रखना सीक्वेंस में, लेकिन उसको अगर अगर समझ लो आपने उसको रनिंग पेज नंबर दिया 1 2 3 4 5 और बैक साइड को भी 1 2 3 4 5 में ही रखा, तो फिर आपके हो सकते हैं पेजेस बहुत सारे बढ़ जाए, फिर आप टेंशन में आ जाए कि मैम ने तो 25 बोला है, 2 और 3 माइनस बोला है और मेरा तो 35 हो रहे हैं, उसमें से 10 पेज तो आपके बैक साइड के हैं। इसीलिए वो सब नहीं हो, हमें भी फर्स्ट लुक में ऐसे नहीं लगे कि उसने यार इतना लंबा प्रोजेक्ट क्यों लिखा है। For that, clarity of yours as well as ours, you please give the separate number. या तो सिर्फ A, B, C, D, E, F, G ऐसे नंबर दे दो। लेफ्ट साइड को उसको भी सीक्वेंस रखना है, लेकिन फिर उसमें आप भूल जाते हो, तो अगर थर्ड पेज के पीछे आता है तो थर्ड A या थर्ड B जो भी नंबर आपको रखना है वो रखो, तो आपको पता चलेगा वो जो ब्रैकेट में A B लिखा हुआ है मतलब वो बैक साइड का है, वो लेफ्ट साइड का है, राइट। और वो वहां पे सीक्वेंस में आप डाल सके, और फिर हमें भी समझ में आए कि अगर उसमें ब्रैकेट में ए या बी या ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसका मतलब है ये लेफ्ट साइड का पेज है, इसलिए सीक्वेंस में उसको नहीं ऐड करना है। और आपका प्रोजेक्ट 25 पेज का या 27 पेज का ही हो रहा है या 23 पेज का ही हो रहा है, वी विल कम टू नो अकॉर्डिंग टू दैट। गॉट इट? यस, यस पुनीत बोलिए। हाँ यस मैम, मैं ना मराठी में टाइप कर रहा हूँ, तो उसके लिए फॉन्ट मंगलम चलेगा कि कुछ फॉन्ट नहीं, उसके वो लिए फिर डिसाइड मराठी में टाइम्स रोमन के रिलेटेड कौन सा फॉन्ट है जो वेरी क्लियर है और थोड़े छोटे भी है, वही वाला रखिएगा। ओके ओके ठीक है। हाँ, मराठी में और वही वर्ड क्लैरिटी वर्ड वाला फाइल जो भी है वही फॉन्ट रखिएगा कि जो विच लुक्स वेरी क्लियर, नीट एंड स्मॉल। ओके, और उसका साइज वही और वर्ड, रहेगा। अगर 12 में हाँ बहुत ही 12, छोटा हो जाता है तो वो 14 वो कर सकते हो, क्योंकि मराठी में हिंदी में वो थोड़ा चेंज हो जाता है। नो, तो उसको ओके चेक कर लीजिएगा कि अगर टाइम्स रोमन में 12 कितनी साइज का दिखता है उतनी साइज का ये वाला दिखना चाहिए। करेक्ट? ओके। स्पेसिंग और जो वर्ड भी हम फाइल लोग ने भेजनी ऑर्डर है किया कि है वो उसको, रखिएगा। हाँ जी, यस यस, वर्ड फाइल भेजनी है कि उसको पीडीएफ बना के भेजनी है? पीडीएफ बनानी ही है, अगर वर्ड रखोगे तो यस आगे पीछे ओके हो जाता है। ओके, यस पीडीएफ ही बनानी है तो वो एकदम सेट फाइल रहेगी, नहीं तो फिर बोलेंगे ठीक है। हमने ये लिखा था लेकिन ये पेज नहीं आया, वो पेज नहीं आया। पीडीएफ में वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, इसलिए पीडीएफ ओके बना थैंक यू के मैम, ही भेजो। यस, थैंक यू मैम। यस मिनल बोलिए। मिनल मैम बोलिए। आपने वर्ड मतलब हम जैसे वर्ड फाइल में जो बनाएंगे तो आपने जो लेफ्ट पेज का कंसेप्ट बोला है, तो वो तो वहां तो कुछ लेफ्ट राइट होता नहीं, सिर्फ नंबर नहीं होता, इसलिए तो नंबरिंग का हम लोग मगजमारी कर रहे हैं बेटा। सिर्फ नंबर से ही मालूम पड़ेगा कि लेफ्ट है कि राइट। ये सिर्फ नंबर से ही मुझे मालूम पड़ेगा ये बैक साइड का या तो लेफ्ट साइड का। वो और यदि हम लेफ्ट साइड नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर कुछ नंबरिंग नहीं करना है, फिर तो नंबरिंग नहीं करना है बेटा। फिर क्यों नंबरिंग करेंगे? जहां पे जो भी पेज पे कहीं ना कहीं, क्योंकि समझ लो आपके राइट साइड पे आप यमन लिख रहे हो। ओके, राइट साइड पे पेज नंबर 5 राइट साइड पे आप यमन लिख रहे हो, तो यमन जहां पे लिखा है उसके बराबर सामने लेफ्ट साइड पे ही आप वो उसका चार्ट बना रहे हो जी। तो उसका लेफ्ट साइड है 5 नंबर के पेज के सामने का जो लेफ्ट साइड है वो 4 का बैक साइड है, बराबर? राइट राइट। उसको या तो 4A या 4B नंबर दे दीजिएगा, तो आपको मालूम है एक तो घुसाना कहाँ है, नंबर 1 इज दैट एंड सेकेंड इज, हाँ हमें पता चलेगा कि यमन यम है, इसलिए वहां पे पहले चार्ट दिया है उसके बाद में यमन यम दिया है। करेक्ट? ओके ओके मैम, थैंक यू। यस वेलकम। मैंने आज एक्स्ट्रा चाय इसलिए पी थी। या लतिका बोलिए। मैम जैसे मैंने साधन पाठ को मैंने कंसेप्ट लिया है, तो उसमें फिर क्लेशाजन वो भी आता है, तो उसे भी हमें डिस्क्राइब करना है फिर उसमें। वैसे मैंने बताया था कि साधन पाद मत लिया लो, या तो हाँ, क्रिया योग लो या अष्टांग योग लो, या तो फिर हम्म। ऐसे मेंशन करो कि माय फेवरेट टॉपिक इज साधन, kriya yoga and ashtanga yoga. Then you don't have to include everything, you can include only these two. Correct? You can come down to this like this. अगर आपको साधन पाठ शब्द यूज ही करना है करो। So techniques given in साधन पाठ, क्रिया योग, अष्टांग योग और ओनली क्रिया योग और ओनली अष्टांग योग, नो प्रॉब्लम। या तो सारे जो भी है तो ऐसे स्पेसिफाई कर दो, उसकी वजह से आपका टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज यू हैव मेंशन्ड इट इन योर टॉपिक एंड सो वी हैव टू चेक इट अकॉर्डिंग टू दैट। गॉट इट? ओके मैम, थैंक यू। यस, या कृषा बोलिए। हेलो मैम,
So I had taken Chitta Prasadna, so like how to remove 9 antarayas क्या and लिया है? सॉरी, Chitta Prasadna. So 9 antarayas and अच्छा, Sahabhavas, हाँ like हाँ, how to remove them. So like I started working on it and everything, but all I could complete the topic in like 7 slides at most. So okay. like if now other than that, so I need to add vrittis and all of that, like to clear the concept a bit more, to add on to the topic and everything. So I can add vrittis and like I can add No, don't abhyasa do to this. it. खिचड़ी नहीं बनाना है बेटा. Okay. Okay, हाँ, because you are making the slides. Right now Like we spoke about that only, that yeah, if you will not be making slide. PowerPoint slides, it will be very less. No, Okay, sorry, my and mistake. so I'm you not have making to slide. make, you will need to write. आपने कौन सा लिया है topic? Again you say To remove अंतराया. 9 antarayas and 9 अंतराया. Sahabhavas. तो 9 अंतराया पे कितना लिखने का है? हर एक के ऊपर एक को लिखो. एंड सहाबुआ आता है. एंड अंतराया एंड सहाबुआ से क्या प्रॉब्लम होता है? एंड हाउ टू ओवरकम अंतराया एंड सहाबुआ. ओ कितना हो जाता है भाई, थक जाओगे लिखते लिखते. यू अंडरस्टैंड? यू जस्ट डोंट हैव टू जस्ट नेम इट. नेम इट करने के Okay. लिए आपको प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, आपको सिर्फ वो लिस्ट नहीं करना है. ओके, अंतराया में व्याधि मतलब कि हम लोग ने काफी एक्सप्लेन किया है, राइट? करेक्ट. व्याधि, स्त्यान, वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो सब लिखो. उसके बाद में वो हमें कैसे अफेक्ट करता है वो लिखो. तो हर एक के ऊपर एटलीस्ट एक 2 पैराग्राफ तो जाएगा ही जाएगा, राइट? तो 9 के ऊपर अगर लिखने जाओगे तो एटलीस्ट 9 पेज तो उसी में हो जाते हैं. और कीप इट इन माइंड कि एटलीस्ट 9 पेज तो मेरे को लिखने ही है इसके ऊपर. और फिर 4 के ऊपर दूसरा 4. एंड हाउ टू ओवरकम देम. अंतराया एंड ये सहाबुआस कैसे जाते हैं? ईश्वर प्रणिधान से, राइट? सो ऑटोमेटिकली यू हैव टू राइट व्हाट इज ईश्वर प्रणिधान. एंड इफ यू आर राइटिंग ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है? अंतराया भाव एंड समाधि भावना, समाधि की तरफ जाने के लिए, राइट? तो वो भी रिजल्ट आ जाएगा. तो ईश्वर प्रण को रिजल्ट आ जाएगा. तो पूरा एक्चुअली स्पीकिंग फॉर एवरीवन आई एम टेलिंग यू, कुछ भी हो जाए आप सब लोग ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक को टच कर रहे हो. हाँ, डिटेल में नहीं लिख रहे हो. डिटेल में नहीं लिख रहे हो. एक शब्द में, एक लाइन में, 2 लाइन में सब कुछ आ जाएगा. सब कुछ मतलब वृत्ति निरोधा से लेकर के समाधि अवस्था तक एकदम शॉर्ट में. क्योंकि कोई भी टॉपिक लो, वो क्यों है? ऋषि पतंजलि ने तो कनेक्ट किया ही है समाधि तक पहुंचने के लिए. अभ्यास क्यों है? तो भाई समाधि तक पहुंचने के लिए. अंतराय से क्या होता है? तो समाधि तक नहीं पहुंचते, इसलिए ईश्वर प्रणिधान करेंगे. ईश्वर प्रणिधान से हम समाधि तक पहुंचेंगे. यू अंडरस्टैंड? सो समवेयर और द अदर यू विल बी टचिंग अपॉन एवरीथिंग, बट इन नटशेल यू डोंट हैव टू राइट इन डिटेल. अगर आप ईश्वर प्रणिधान लिख रहे हो तो अभ्यास एंड वैराग्य पे लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन 1-2 रेफरेंस तो आएंगे कि अभ्यास, वैराग्य एंड ईश्वर प्रणिधान, ऑल द 3 आर द वेज टू रीच समाधि. यू अंडरस्टैंड? सो लाइक दैट एवरीथिंग विल कम. इसीलिए फाइनल लिखने से पहले स्ट्रक्चर बनाओ. स्ट्रक्चर बनाने के बाद में रफ में लिखो एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग इन द फाइनल. जो लोग टाइप कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी होता है कि भाई वो लोग टाइप करते हैं, फिर वहां से डिलीट करके कुछ और उसमें कट पेस्ट कर सकते हैं. जो लोग हैंड रिटन बनाते हैं उनके लिए पहले रफ बनाना बहुत जरूरी हो जाए. और आप लोग भी जो फाइनल कॉपी भेजते हैं वो लोग पहले रफ कॉपी अलग रखना, उसमें से सिलेक्ट कर करके फाइनल कॉपी करके फिर उसको स्कैन करके भेजना. नहीं तो जो आपको नहीं रखना है वो वाले पॉइंट्स भी आ जाएंगे. गॉट इट? गॉट इट कृषा? Yes, ma'am. ऑल द बेस्ट. या थोड़ा एलोबरेट करो. ओके, हिंदी मूवी 1-2 देख डालो. कि एक छोटी सी स्टोरी होती है जिससे हमें इतिहास में सिर्फ थोड़े ही पत्ते पढ़ाए गए हैं. वो 3 या 4 साल का उनका शासन रहा था, या थोड़े ही साल का शासन रहा था. उसमें से 3 घंटे की मूवी कैसे बनती है, और वो भी एकदम इम्प्रेसिव. करेक्ट? थोड़ा इंस्पिरेशन लो. यस रानू जी बोलिए. रानू जी आप म्यूट हो, अनम्यूट करिए. मिस अभी आ रहा है आवाज? यस. थैंक यू मिस. मिस मैंने साधना पद यूज किया है जिसमें अविद्या मेरा मेन वो है. हाँ, तो साधना पाठ शब्द मत लिखो, अविद्या लिखो ना. ओके. मेन टॉपिक अविद्या है. प्लीज आप पाद पे मत जाओ, आप चैप्टर्स पे मत जाओ. पतंजलि योग सूत्र, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन अविद्या.
ओके ओके तो डू सो आई हैव टू अविद्या अगर आपने टॉपिक लिया है तो आपका मेन टॉपिक है क्लेश। क्लेश शब्द क्लेश। लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप अविद्या लिख सकते हो। लेकिन ओके, अगर मिस। अविद्या लेते हो तो अविद्या के साथ साथ में बाकी के 4 भी आ जाते हैं। हाँ, 4 क्लेशास। हेय हाँ। हेय वृत्ति हेय हेतु हान हान पान सब कुछ आ जाए। हाँ, यस तो वो चारों चलो। क्लेशास के बारे में मिस मुझे सिर्फ एक शॉर्ट ब्रीफ देना होगा ना, और अविद्या के ऊपर मेरा ज्यादातर टॉपिक रहेगा। हाँ, ज्यादातर आपका अविद्या के ऊपर होगा, करेक्ट। ओके अविद्या के ऊपर होगा। अविद्या इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द फर्स्ट और द फाउंडेशनल क्लेशा। तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, और उसको कैसे हटाएंगे, क्लेश कैसे जाएंगे, ध्यान है तद्वृत्तया, वो वाला सूत्र ले सकते हैं। एंड देन अदर थिंग्स यू नो, हाँ, हान, उसका हान कैसे होगा, हान मतलब फ्रीडम फ्रॉम क्लेश कैसे होगा, वो वाला भी आपका कंक्लूजन में आ जाए। ओके मिस, थैंक यू मिस। यस, माय प्लेजर। या भक्ति बोलिए। मैम इन केस हम कोई और ये ले रहे, कोई कोट या कुछ कहीं और से ले रहे, तो उसको साइट करना रहेगा क्या? क्या मतलब करना रहेगा? हाँ हाँ, साइट तो आप पीछे रेफरेंसेस डालते हैं, हाँ बिब्लियोग्राफी, हाँ 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 वहां पे डाल सकते हैं। मैंने उस वक्त भी बताया था कि आप अगर समझ लो पेज नंबर 6 पे आपका कोई रेफरेंस आता है, तो वो पीएचडी वगैरह करते हैं तो वो पेज नंबर 6 में नीचे नोट में डालते हैं। इतना सब हाँ, करने की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फिर उसके लिए सेटिंग बदलना पड़ता है आपको। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। या तो सबके लिए वो सब पेज के लिए सेटिंग डाला तो इतना सारा टाइम वेस्ट, जगह वेस्ट होगा। ओके, सो डोंट डू दैट। इन द रेफरेंस यू पुट, ओके, इन द रेफरेंस यू कैन पुट। थैंक यू। माय प्लेजर। यस लतिका जी बोलिए। अब वापस मैम आइए। आसन, हाँ आसन के ऊपर भी लिख सकते हैं हम। कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम पतंजलि योग सूत्र। यू कैन डेफिनेटली डू इट। यस। ओके। हेलो मैम, नमो नमः। आप बीच में से कैसे घुस गए? रुको रुको, कौन बोल रहे हैं अभी? सुधा पंडित। हाँ, सुधा पंडित। हाँ सुधा जी, 1 मिनट रुकिए। हाँ, आप हाथ ऊपर करके रखिए। आगे बहुत 2-3 लोग बाकी है, उसके बाद में आपका टर्न आएगा, ठीक है? अभी अस्मिता बोलेंगे, उसके बाद रिद्धि बोलेंगे, रिद्धि के बाद आप बोलिएगा, ठीक है सुधा जी? ओके मैम, ओके। यस, या अस्मिता बोलिए। मैडम मैंने क्रिया योग ये सब्जेक्ट लिया है, तो उसमें मुझे क्लेशों के बारे में मतलब थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना? लिख सकते हो अगर लिखना है तो, क्योंकि क्रिया योग से क्या होता है, हाँ, तपस्या क्लेश से, तनुकरणार्थ। हाँ हाँ, क्लेश तनुकरणार्थ, तो ये वेरी वर्ड आता है, नाइस, तो आई एम क्लेशों सो को भी हैप्पी। थोड़ा सा नहीं, काफी लिखना आएगा, पड़ेगा। काफी आएगा ना? काफी आएगा। और क्रिया ईश्वर योग क्या है प्रणिधान। वो समझाएंगे, फिर क्रिया योग के रिजल्ट समझाएंगे, तो उसमें ये दोनों आएंगे। आप अगर चाहो तो पूरा एक चैप्टर भी बना सकते हो, क्रिया योग तप तप। क्रिया योग इज नंबर फर्स्ट चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल आपका, तो फिर तप 1A, स्वाध्याय 1B, ईश्वर प्रणिधान 1C, सेकेंड चैप्टर रिजल्ट्स ऑफ क्रिया योग। यस, क्लेश तनुकरणार्थ एंड समाधि भावनार्थ, समाधि भावनार्थ। A and B करके वो भी लिख सकते हो। यस, वेरी गुड, वो आएगा ही, इट इज पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, करेक्ट? हाँ, और मैडम ईश्वर प्रणिधान में हम समाधिपात के भी मतलब जो ईश्वर प्रणिधान अथवा या वो जो सूत्र है उसका भी वो भी ले सकते हैं ना उसमें, उसको मतलब भी ले उत्तम सकते अधिकारों के हैं। लिए भी। और फिर हम लोग ने रिजल्ट्स किए हैं, करेक्ट? अष्टांग योग जब किया, आसन का, प्राणायाम का, यम का रिजल्ट, नियम का रिजल्ट, अहिंसा सत्य है उसका क्या क्या रिजल्ट है, उसमें ईश्वर प्रणिधान का रिजल्ट है। हाँ, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधानात्, करेक्ट? हाँ। वो वाला सूत्र भी आएगा। और नियम में भी ये तीनों नियम में भी आते ही है, शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तो नियम का भी थोड़ा सा, यम नियम का भी थोड़ा थोड़ा मेंशन कर सकते थे कि ये जो तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसलिए ऋषि पतंजलि हैज रिपीटेड इट इन द नियमा आल्सो, एंड ही हैज गिवन द रिजल्ट ऑफ दिस नियमा सो एंड सो करके लिख सकते हैं। एंड व्हाई इट इज इंक्लूडेड नियमा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नियमा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियमा, जो हमने किया है उस हिसाब से वहां पे आप लिख सकते हैं। डेफिनेटली, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। सही जा रहे हो, लगे रहो। थैंक यू। करेक्ट? और मैडम जो पहला पेज आपने दिया है ना, हाँ, वो ऐसे ही हम प्रिंट करके वो वहां पे लगा सकते हैं, मतलब हाँ, नेम तो वगैरह आप जो जब है। वो प्रिंट कर रहे हो उसके पहले जो डैश 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 है वहां पे आपको अपना वहां पे नाम अपना वो नाम। लिखना है और वो करना है, हाँ, करेक्ट? और उसके टीचर बाद का में नाम है हाथ वहां पे से हमारा लिखने वाली नाम। है। हाँ,
हाथ से लिखने वाली हूँ, तो सब सिर्फ फर्स्ट पेज मेरा वो प्रिंट आउट आएगा, उसके बाद में सब अंदर हाथ हाँ, से अगर लिखूंगी तो अगर चलेगा। फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट नहीं लिखना है तो आप आपके हाथ से ही वही सब इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके एक के लिए वो थैंक आपको यू। आउट ऑफ पेज जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको भी हाथ से लिख दो, चलेगा। ओके ओके, थैंक यू। यस, वेलकम, ऑल द बेस्ट। या रिद्धि बोलिए। Yes, ma'am. Thank you so much for this session. I have, ma'am, I want to share 4 points. So far, for 20 plus years, I have met with gurus who always said, scriptures मत पढ़ो, ये मत करो। यहाँ पर आप scriptures के साथ करवा रहे हो। तो मैं manuscript ढूंढ रही थी और मुझे बताया कोई लोगों ने कि manuscripts are not available. तो मुझे Manuscripts of what? of the योगा सूत्रा। ओके, तो मुझे मैम कैलीग्राफी से मैन्यूस्क्रिप्ट बनाना है और वो नहीं, वो बनाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल होगा कुछ ना कुछ। और वो कैलीग्राफी वाला मत यूज करो, जो अवेलेबल है इस वक्त वो यूज कर लो, क्योंकि वो बनाने जाओगे आपके पास बहुत सी दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कौन से वाला फॉन्ट वाला आप मैन्युस्क्रिप्ट या तो संस्कृत वाला यूज कर रहे हो। यस, संस्कृत यूज कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। So Yes. that is available either on the net, you can cut paste it, that sutra. I'm talking about sutra only. You can cut paste that, or if you are typing, Hindi typing, Sanskrit typing, everything is available. Yes, Correct? ma'am. Uska ek particular font hai, use that. Yes, Okay, ma'am. and it seems that you are very well versed with all these technical things and all, so it will be very easy for you. Right now you don't go for original scriptures or manuscripts because उसके कोई extra marks नहीं मिलेंगे। तो जी उसमें आप आपका टाइम बहुत यूज उसमें करो, उससे बेटर है ना you utilize your creativity in writing few more points, clarify few more points, right? What is more important? संस्कृत आप कोई भी भाषा में संस्कृत आप कोई भी लिपि में कोई भी स्टाइल में लिखा है, वो संस्कृत का जो सूत्र है वो तो वैसा ही रहेगा। यू अंडरस्टैंड? वो वैसा ही रहेगा, एकदम ओल्ड स्टाइल में, वो फटे पुराने पेज पे दिख रहा है, वो ताम्र पत्र पे दिख रहा है या गोल्ड पत्र पे दिख रहा है, हार्डली मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज द सूत्र। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पे मत जाओ, या तो सिंपल, या आप खुद लिखो, या तो खुद नहीं लिख सकते हो, टाइप नहीं कर सकते हो संस्कृत वाला, तो जो टाइप किया है उसको कट पेस्ट करो, ठीक है? Yes, Yes. ma'am. और So पीडीएफ then, करने के पीछे का कारण भी यही होता है कि वो वाले फॉन्ट वैसे के वैसे दिखे, yes, ma'am. नहीं तो वो नहीं, वो चेंज हो जाते, इसीलिए। ओके, Yes, ma'am. And then further ahead, I wanted to. प्लीज से लिटिल लाउडली। Sorry. So further ahead, I wanted to study word for word because आपने काफी चीजें explain की है और मुझे अभी बहुत मन कर रहा है कि मैं इस वजह से सूत्र को word to word पढूं और थोड़ा सा उसमें elaborate करूं मेरा experience. Then further 8 limbs of yoga जो योग सूत्र आपको में जो है. भी करना है करिए, Okay. you are allowed, but you will need to submit it by 8. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 8 limbs of yoga जो है, it is very much similar to Jainism. So To what? Similar to Jainism. Okay. So I wanted to not compare but similarities को analyze so वो कंक्लूजन में या उसके बाद में अगर लिखा है तो वो एक आध पेज में आना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट कंपैरेटिव स्टडी नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी हम लोग एडवांस डिप्लोमा में करते हैं, तो एडवांस डिप्लोमा में आप वो सारे पॉइंट्स डिटेल में यूज करिएगा। अभी के लिए वो शॉर्ट में एक आध पेज या 2 पेज आप वहां पे डाल सकते हैं। Yes, ma'am. Okay? आप डेफिनेटली डाल सकते हो, जो मैंने कहा कि आपकी क्रिएटिविटी आप यूज कर सकते हो। आपने कहीं और पढ़ा है, सिमिलैरिटी कहीं पे दिखी है, बहुत सारे लोगों को सिमिलैरिटी जैनिज्म में, बुद्धिज्म में या तो वेदांत वगैरह में दिखती है, अपने अपने कंसेप्ट की, वो है ही वहां पे, है ही। तो अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो वेरी नाइस, बट दैट शुड नॉट बिकम द हाईलाइटेड पॉइंट, दैट इज नॉट योर मेन टॉपिक। ओके, मेन टॉपिक हमारा पतंजलि योग सूत्र का ही है, तो वही रहेगा। Yes, Got it? पक्का। Any And other ma'am, question? from there, I wanted to create for a working professional, I wanted to propose a schedule कि इस You तरीके want से to do what? Sorry, I missed. propose a schedule for a working professional. So reading this book, they can
grasp that schedule for See, day-to-day life. right now, dear, our purpose is making a project. So submit it as a project. Whatever you want to do it for working professional or for anything, or if you want to print it as a book also, then that will be later on. Do Yes, not submit it in that form, because we will be accepting project form only Okay, with the ma'am. specifications we have given. If you are printing it as a book, or sending me as a book or any other thing, okay, that you wanted the other people to get help out of it and all, that you do it after you submit it. Whatever material you have submitted it, let it be in project form only. Yes, ma'am. This Okay. is a project only. It will be a PDF, but any What reader, concept you are taking? the concept, What concept from you are choosing? 8 limbs of yoga, ma'am. What 8 limbs of yoga means? Ashtanga yoga. Yes. Correct? So Ashtanga yoga, so Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. All that 8 steps you will be writing, and why you are doing it, it's a part of, Shuddhi, Kshaya, Vagera, Vagera, wohi aapka aayega. Now you are putting it in a different form. See to it. Your form should not be completely different from the form which we have given for our project. Okay? Yes, ma'am. The chapterization, the font, etc., etc. See to it that Everything. your style fits into this description. Yes, ma'am. Got it? Yes, Yes. So within this limit, use your creativity. How you Yes. want to present it, for what purpose you want to present it. But it should be in these given limits. Got it? That is Yes. definitely there, Any ma'am. other question? So we can, in the last one page, like you said, 25 plus or minus 2, ऐसा आपने Yes. बताया था. तो हाँ. लास्ट एक पेज में मुझे ये शेड्यूल जैसे मैंने जिया है इस कोर्स के ठीक है, टाइम. नो प्रॉब्लम. अगर वो एक पेज में आ रहा है, then I have no problem. Yes, and then, ma'am, standardization of yoga is very important, I feel, in. But that is not coming in your topic. Your topic is Ashtanga Yoga. Yes, ma'am. So, Correct? And so please don't get into it that, why standardization is not there and now we should have standardization. Remain honest to your topic. Your topic is Ashtanga Yoga. Okay? Yes. 8 limbs of yoga. Stick to that. yes, Okay? ma'am. नहीं तो बहुत सारे साइड टॉपिक्स हो जाते, बहुत सारे साइड टॉपिक्स हो जाते, फिर सब में घुसने जाओगे, you will not be able to do justice to your 8 limbs, because that is the main topic. We read the title, and if you have not done justice to it and you have written beautifully on other aspects, still you will not get marks, because Yes. we are looking on this topic. Correct? हाँ, ma'am. Because तो we ये are also tied down by the rules and regulations. आप लोगों को नहीं मालूम है, आपके थियोरी पेपर्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स एंड प्रोजेक्ट के मार्क्स 3 टाइम्स चेक होते हैं. अगर किसी को अच्छे मार्क्स मिले हैं प्रोजेक्ट में, तो वो लोग 5 लोग के पास जाते हैं कि इसको क्यों अच्छे मार्क्स दिए हैं, और अगर किसी को कम मार्क्स है तो भी वो 4-5 लोगों को मॉडरेट होता है सब कुछ. ये यूनिवर्सिटी की एग्जाम है. वैसे डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा हार्डली काउंट्स, इट्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम, राइट? लेकिन है किसका? यूनिवर्सिटी का. एंड सो वी हैव टू गो थ्रू दिस. सो मॉडरेटर के पास भी जाता है ये. ओके? एंड सो इवन वी कांट, अगर मेरे को लगे कि यार मुझे तो रिद्धि पे बहुत प्यार है, कितना अच्छे से लिखा है, ज्यादा मार्क्स दे दो, मेरी नौकरी जाएगी भाई. You understand? And so if it will not be into the given descriptions, and then you may lose your mark. You have put so much of effort on that. You wasted so much of energy on that. But what is the point? What is asked? Question जो पूछा गया है उसका आंसर लिखना होता है. करेक्ट? हाँ. अगर क्वेश्चन पूछा गया है कुछ और आपने आंसर कहीं और से कुछ दिया है, तो उसका मार्क्स नहीं मिलता है, राइट? वो हो जाएगा. इसीलिए remains stick to the systems which is given. And that's why, that is the reason today also we are spending, I could have given holiday today to you all today. Why I am here? So that ये सारे जो भी unnecessary ambiguities है, वो सारी हम clear कर सकते, right? Yes, ma'am. Yes. All the best. Thank you, ma'am. Yes, Melissa, बोलो.
Ma'am, my only question is, in most of the sutras there are dots and dashes above, which I'm not able to type out on this. So if it's in a plain text, it's okay, right? It's okay, and the best way is, अगर हिंदी में लिख लिए है तो ठीक है, या तो फिर otherwise you can take that much thing, या तो इंग्लिश में लिखो। हाँ, यमन यम का I mean जो भी आपका सूत्र है इंग्लिश में लिखो, it will be fine without dots वगैरह वगैरह, that we understand. Okay. आप लोग ने भी देखा होगा मेरी नोट्स में भी कभी कभी कुछ इंग्लिश में आता है, कभी कुछ हिंदी में आता है, बिकॉज राइट नाउ if it is PhD, when I did my PhD, I was supposed to look after that, and I looked it after, but at the end, पहले तो जो गया वो जाने दिया, फिर बाद में जब फाइनलाइज किया तब सारे फॉन्ट सेम आने चाहिए। अगर मैंने हिंदी में लिखा है तो वो सारा संस्कृत में लिखा है तो सारा संस्कृत में वो लास्ट में। इन प्रोजेक्ट वी आर नॉट गोइंग बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, इट्स फाइन। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो भी सही है, अगर बाई चांस गलती से भी ये संस्कृत का जो शब्द लिखा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, देन ऑल्सो वी डोंट बॉदर, because our purpose is not to, it's not exam of English literature or Hindi literature or Sanskrit literature where spelling mistake will be counted as big blunder, right? So don't worry about it. Okay, just remain relaxed, and the gist, the understanding meaning, understood meaning, if you are taking, fine. Understood words you are taking, fine. Okay, thank you so much. Thank you. All the best. Yes, Renu Balaji. हम Now मैम last question, last question will be Meenakshi, and then we will be concluding. मैम Yes. जो फर्स्ट पेज है, हम लोग जो हैंडराइटिंग में जो लिख रहे हैं तो वहां पे जो उसका लोगो है वो मिस हो जा रहा है मैम, तो फिर क्या? नो प्रॉब्लम, अगर उसका फोटो लेकर के चिपका सकते हो तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। Yes. थैंक यू मैम। हाँ, वो हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो फोटो लेकर के उसको प्रिंट आउट लेकर के वहां पे चिपका सकोगे छोटा सा, लेकिन अगर नहीं होता है बाई चांस, डोंट वरी। ओके, या तो आप एक पेज, कोई एक ने बोला था कि अगर वो एक पेज का प्रिंट आउट ले वैसे लो तो उसमें वो लोगो आ जाएगा। वो एक पेज हम प्रिंट करके फिर उसको फोटो निकाल के स्कैन करके भेज। यस, डन, करेक्ट, वो थैंक यू। भेज सकते हो। यस, वो हो जाएगा। या मीनाक्षी बोलिए। I'm coming back to Melissa's question. वो संस्कृत श्लोक, मैम, we can copy paste also, right? Yeah, that's what I said. You can copy paste also. संस्कृत सूत्रास और श्लोक और कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं, if you have that, you can put it like that, or you can write it handwritten. आपके वो जो टाइप पेज है वहां पे, या तो नहीं, वो नहीं कर सकते। अगर आप कंप्यूटर पे ही पूरा कर रहे हो तो देन आपको कट पेस्ट करके या कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप डेफिनेटली वो कर सकते हो, दैट इज अलाउड। आई मेंशन्ड इट अर्लियर आल्सो, राइट? Just one more question, sorry. Ma'am, we can give examples of some particular yogi if I want to You give in can, particular, ma'am. if it is coming in your topic, and Ji, if you ma'am. want to, definitely you can. In But personal that- experiences or in conclusions But somewhere, that or particular somewhere else example, also. ma'am, some Sorry, your is my network not problem or your network is not? नो मैम, शी इज स्टक। Now it's better. Because I was seeing everyone's, I mean, especially Meenakshi's screen was steady. Yes, Meenakshi. You can use it. मैम, मैं सुधा पंडित बोल रही हूँ। नमो नमः मैम। सॉरी सुधा जी, बोलिए। तो मैम, मेरा टॉपिक है अष्टांग योग। तो ये आपका ये पेजेस जो है 20 या 25, तो उतना होना कंपलसरी है कि उससे कम भी होगा तो चलेगा क्या? 25 होना है, प्लस माइनस 2 बोला है, तो 23 पेजेस होता है तो ठीक है। अच्छा, 27 होता है तो ठीक है, उससे ज्यादा बहुत बढ़ाना नहीं है और बहुत कम नहीं देना है। ओके, अच्छा, कम भी नहीं होना है। नहीं। हाँ, आप लिखने बैठो, आई एम श्योर आप बहुत ज्यादा लिखेंगे सुधा जी। नहीं, मेरा कम ही हो रहा है। मैंने नहीं अष्टांग होगा, योग में लिखा लिखना है, शुरू करो आप। लेकिन आप हैंड रिटन लिख रहे हो ना? हैंड रिटन लिख रहे हो ना? यस मैडम। हाँ, तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेरे को मालूम है। लिखने तो बैठो, शुरू तो करो लिखने का।
प्लस स्ट्रक्चर मैम बनाओ। मैंने ओके लिखा है, लेकिन मैम जो टॉपिक है अष्टांग योग का, तो मैंने अरे यम अष्टांग नियम योग पे सुधा जी कैसे कम हो सकता है? अष्टांग योग में 8 टॉपिक वो है, ओवरऑल 8 टॉपिक है, उसमें यम में 5 और नियम में 5, तो वो 10 वो हो गए, 10 और बाकी के 7, हाँ 18 17 पॉइंट्स है। 17 पॉइंट्स के एक एक पेज गिनो तो भी तो 17 उसमें चला गया। फिर एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, फिर आपका वो बिब्लियोग्राफी, एक्नॉलेजमेंट, कितना हो गया भाई? आराम से हो जाएगा। ओके चिंता मत करो, हो जाएगा। ओके मैम। ओके ओके मैम। तो ऑल द बेस्ट। सबका वो मतलब जैसे यम नियम एक ही हमको सूत्र में लिखना है कि सब अलग अलग सूत्र में, जैसे यम का अलग सूत्र में लिखना है? हाँ, तो पहले एक सूत्र दिया हुआ है, यम का पूरा सूत्र दिया है, नियम का पूरा सूत्र दिया है, वो तो आपको लिखना ही है। वो तो और हाँ फिर वो अहिंसा क्या है वो डिटेल में लिखो, सत्य क्या है वो डिटेल में लिखो, अहिंसा का रिजल्ट क्या है वो उसके साथ लिखो, सत्य का रिजल्ट क्या है वो सबके रिजल्ट भी आपको लिखना पड़ेगा। बराबर है? तो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। अष्टांग योग वाले को कभी वो प्रॉब्लम नहीं आता है कि बहुत कम होता है, अष्टांग योग वाले को यही प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारे पेजेस हो गए, उसको कैसे कट डाउन करें। ठीक है, वो हो जाएगा, लिखना शुरू करो। ओके ओके मैम। जैसे मैंने ओके बोल दिया था थैंक यू। लास्ट टॉपिक, लेकिन अमृता जी 2-3 दफे अपने हाथ ऊपर किया है, और शिल्पा एंड देन वी आर कंक्लूडिंग। यस अमृता जी बोलिए। Ma'am, I have chosen the first sutra, Atha Yoga Anushasana. ओके So it is okay ना that I can इट इज write on ओके, it. बट देन आपके पास लिखने के लिए योग वर्ड है और अनुशासन है। अनुशासन पे बहुत ज्यादा नहीं लिखना होगा, उसमें 1-2 पेज लिख सकोगे, लेकिन योग है, फिर योग को आप 25 पेज तक खींचोगे। That I have to see. Yeah, yes, ma'am. और मैम I have selected 2 topics, समाधि पर। और हम लोग ने सूत्र चूज करने के लिए नहीं कहा है, हम लोग ने कंसेप्ट चूज करने के लिए कहा है। तो समाधि पद पे मैम लिखूं तो मैं? समाधि पाद क्यों लिख रहे हो? वही तो मैंने कहा, समाधि कंसेप्ट लिखो, ओके मैम। या तो या वृत्ति कंसेप्ट लिखो, या तो निरोध कंसेप्ट लिखो, या तो अभ्यास ठीक या है मैम। वैराग्य, या तो योग कंसेप्ट लिख रहे हो तो योग मतलब क्या, तो फिर शिव जी वाला थोड़ा बहुत लेकर के अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र चित्त वृत्ति निरोध, फिर चित्त मतलब क्या, वृत्ति मतलब क्या, निरोध मतलब क्या, निरोध कैसे कैसे होगा, अभ्यास एंड वैराग्य ईश्वर प्रणिधान से निरोध होगा। अगर निरोध होता है वृत्ति का तो कहाँ पहुंचते हैं? समाधि तक पहुंचते हैं। ऐसा वाला प्रोजेक्ट आपका बन सकता है ओके मैम। या अंडरस्टूड। अगर योग शब्द लिया है तो। हमें आना चाहिए कैसे घुमाना है, राइट वे में। ओके राइट। ओके मैम। Okay, ओके मैम। all या the थैंक best. यू मैम। Yeah, Shilpa, last question for the day. Ma'am, actually I wanted to understand about exam format, कितना time मिलेगा and 1 घंटा मिलेगा थियोरी एग्जाम में। थ्योरी एग्जाम में, और जो आपने डेट्स दिया वो फाइनल है ना 28 में? टेंटेटिव डेट्स है, ये वाली डेट्स मैंने यूनिवर्सिटी मतलब डिपार्टमेंट को भेजी हुई है। दे एक्सेप्ट 99%, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज हम लोगों को क्लासरूम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे हम लोग ये क्लास लेते हैं वैसे ही ये कर लेते हैं। 99% वो लोग ड्रामा नहीं करते, नहीं कर सकते, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लोग टू बी ऑन सेफर साइड टेंटेटिव लिखते हैं। When they said finalize, when they have printed कि हाँ डिप्लोमा की ये डेट से, एडवांस डिप्लोमा की ये डेट से, तब जाके हम उसको कंफर्म कहते हैं। ओके जैसे ही वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, आई विल पुट इट इन आवर ग्रुप कि भाई दिस आर द कंफर्म डेट्स। टिल देन आई विल यूज द वर्ड टेंटेटिव। Every year we use this word, and every year in the beginning, keeping these dates in mind, we announce. I have announced similar thing in the beginning. Yeah, only thing we did this year is we are completing in March itself instead of keeping one exam in April. क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है अप्रैल में ये करना है, अप्रैल में वो करना है। ओके भाई करो, हम लोग मार्च में कंप्लीट कर देंगे। और इस दफे बिकॉज ऑफ few other reason, my personal reason and some other reasons also, I kept in mind to complete the syllabus as fast as possible. I didn't compromise on syllabus. We have taken extra lectures, right, on Sundays. And so I completed syllabus because मुझे नहीं मालूम था कि मैं फरवरी में कितने क्लासेस ले सकूंगी। Luckily I didn't miss out much, so that's why we have completed. So we have completed the syllabus. We are able to do justice to our revision also. We will be able to do justice to mock test also. We will be giving you enough time also, and so there is no harm in completing our exam in March itself. So we are completing our exam March itself. पूरा अप्रैल मजे करो, vacation done.
ओके यस, बाकी जो थियोरी एग्जाम का फॉर्मेट है वो मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल का जो फॉर्मेट है उसमें कोई एक्चुअली फॉर्मेट जैसा नहीं है, आपके लिए सारे नाम वगैरह आ जाएंगे, आप कौन से बैच में हो और कौन से बैच को कितने बजे आना है वो भी आपको आ जाएगा। Yes, now we are back. Okay, done. So we are completing now. Most of the doubts are clear. स्नेहा वापस क्या डाउट है, जल्दी जल्दी बोलो। मैम मॉक टेस्ट के दिन मैं घर पे नहीं हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तो वो थियरी ही रहेगा। और हाँ, मॉक टेस्ट में कोई टेंशन नहीं है बाहर से, लेकिन आप ज्वाइन करना, ठीक है। और मॉक टेस्ट बहुत लंबा 1 घंटे का नहीं रहेगा। मॉक टेस्ट मेन टेस्ट जो रहेगा वो 15-20 मिनट का ही रहेगा, आगे पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा बहुत रहेगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यू विल बी एबल टू इजीली डू इट। ओके, सो डोंट वरी। या आरती लास्ट, बट एकदम लास्ट, जल्दी से बोल दीजिए। मैम मुझे है ना अविद्या पे टॉपिक करना था, अविद्या या क्लेश, तो दोनों में से मतलब कॉम्बिनेशन में कर सकती हूँ मैं ऐसे, अविद्या और Avidya क्लेश। comes under clash. Whether you take avidya, you are talking about clash. Whether you are taking clash, then you will be talking about avidya. So no harm, no problem. ओके मैम, Okay, थैंक दोनों यू। में से कोई भी चूज करना है करो। अगर क्लेश चूज करते हो तो very easily you will be able to write on other also in equal amount of pages or spacing. You will be able to give other topics also. So Okay, ma'am. you can choose safely. You can choose clash. ओके मैम, थैंक यू। All the best. Yes, Rupali. Last means last means last. जल्दी बोलो रूपाली। रूपाली, I can't hear बेटा। नमो नमः मैम। मैम मैंने टॉपिक में अथयोग और छोटे छोटे सूत्र लिए, 4 सूत्र लिए, तो उस पे मैंने Please लिखा do भी है। not do that. Choose one concept. ओके, Our Actually, I topic is what my favorite concept. आपका कौन सा कंसेप्ट आता है? आपको अनुशासन पे लिखना है? जी आपको मैम, योग मैंने शक्ति पे लिखना है? जी मैम, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था मेरा प्रोजेक्ट। किस पे कंप्लीट किया है? आपका फेवरेट कंसेप्ट कौन सा लिया है आपने? मैम 4 सूत्र में से कॉन्सेप्ट लिया है, अथ योग अनुशासन, एंड सेकंड इज 1 सेकंड मैम। याद क्यों नहीं आपने खुद ने लिखा है तो? किसी और का लिया है क्या प्रोजेक्ट? नहीं मैम, यहाँ पे है, मैंने नोट्स हैंड रिटन में किया है मैम। थोड़ी एंजाइटी, डर लग रहा है, इसके लिए मैं बोल नहीं अच्छा, पा रही कोई हूँ। बात नहीं। दूसरा कौन सा सूत्र है? योग चित्त वृत्ति निरोध, योग Okay. चित्त निरोध। हाँ, समझ देन में आगे बोलो। थर्ड वन, थर्ड मैम मैंने लिया है, एक मिनट, एक मिनट, क्लिष्टा एंड क्लिष्टा मैम। हाँ, क्लिष्टा एंड अक्लिष्टा मतलब वृत्ति के ऊपर है बेटा। बेटा सच्ची में नहीं, मेरे को पर्सनली फोन करना। मैं जी अभी जी कुछ बोल मैम, नहीं सकती, आपको डांट नहीं सकती हूँ सबके सामने। जी 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 मैम, ओके। बेटा प्लीज चूज योग और चित्त वृत्ति निरोध। अगर आपने लिया है तो उसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट 25 पेजेस लिख सकते हैं। आपको दूसरा, तीसरा, चौथा सूत्र लेने की जरूरत नहीं है। क्लिष्ट एंड अक्लिष्ट कम्स अंडर वृत्ति, करेक्ट? यस मैम, तो वो yes, वृत्ति के ma'am. टॉपिक में जाता है, वो अलग सूत्र नहीं है। क्लिष्ट एंड अक्लिष्ट के लिए तो वो सूत्र ही अलग से नहीं है, वो वृत्ति के लिए सूत्र है। तो वृत्ति का जो 2 या 3 सूत्र होता है उसी में आपका आ जाएगा। सो इट विल नॉट बी अनदर सूत्र। ओके, यू हैव टू फ्रेम योर टॉपिक इन अ डिफरेंट वे, एटलीस्ट वो करिएगा। ओके, हाँ, आप है ना 4 सूत्र पे नहीं कर सकते हो। 4 सूत्र कैन नॉट बी। आपको हमें करना है माय फेवरेट कंसेप्ट। कोई एक कंसेप्ट लेना है, वृत्ति लो, निरोध लो, वृत्ति निरोध लो, जी, चित्त वृत्ति निरोध लो, द कंप्लीट होल कंसेप्ट। योग कंसेप्ट लो, वो मैंने किसी और को हाँ बोला। आप है ना 4 अलग अलग सूत्र ले, तो आपका फेवरेट कौन सा है इसमें से? दैट इज ऑल्सो नॉट कमिंग। ओके,
देयर इज सम कंफ्यूजन एंड देन आप करने के बाद में पूछ रहे हो, करने के बाद क्वेश्चन मत पूछो. नाउ बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. ओके. बाकी के सबके अभी क्वेश्चंस है क्योंकि वो आप कर रहे हैं, आपने करने के बाद बोलते हो. तो नाउ आई कैन नॉट टेल यू दैट this is not correct. And if you want to submit this, then we have to be ready for whatever result comes to us. Okay? Okay, ma'am. Okay. मैम Shall I call you afternoon मैम today? वृत्तिज ले सकते हैं एज ए टॉपिक, ओनली वृत्तिज. अमृता को बहुत कंफ्यूजन है कौन सा टॉपिक लेना है. क्या ले सकते हो बोलो. वृत्तिज. हाँ, ऑफ कोर्स ले सकते हो, क्यों नहीं. बस अभी वहां पे टिके रहना, घूमना मत. आप एकदम मेरे जैसे हो, टॉपिक जल्दी से तय करने का, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उसके बाद में बहुत लंबा छोड़ा काम है. इसी में घूमते रहोगे तो कब चलेगा. एक ही हफ्ता बचा है. करेक्ट. इतना सारा टाइम, आपने इतना सारा फुटेज खा लिया, कौन सा टॉपिक लूं. मैरिड हो आप. कितने लड़के देखे थे भाई. चलो वो मजाक था, you know that, right? Decide fast and give all your energy to the topic. Okay? Yes. Anyway, any other questions? Rupali, Madam, don't change the मैं topic. अस्मिता. Okay? आगे का चेंज कर लो और फिर एक आध दो पेज है ना इंट्रोडक्शन में, उस हिसाब से डालो कि आप उसको कवर कर लो. ठीक है. आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर एनर्जी, but I know why this is happening with you. Okay? Yes. Linu, how come you come last? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो. Because I know you must be asking for many other. आप नारा दो. नारायण 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 नारायण. Yes, बोलो बोलो. Unmute. मैं इसलिए वेट करी कि अगर मेरा आंसर मिल जाता है तो आई विल नॉट आस्क देम. ओके, बोलो. मैम मुझे ये पूछना था कि मेरा टॉपिक अभ्यास एंड वैराग्य है, बट अभ्यास एंड वैराग्य को यू कैन बी कनेक्टेड विद क्रिया योग, और इट इज नॉट नेसेसरी इफ आई हैव एम्पल ऑफ मटेरियल. यू कैन क्योंकि हमने कनेक्ट किया है. तपस स्वाध्याय के साथ हमने अभ्यास वैराग्य को किया, तो यू कैन डू इट. और if we don't It's fine. it's fine. Okay, It's fine. Your project, your way. okay. या अस्मिता. Thank मैं you, अपना ma'am. भी बंद कर दूंगी. हाँ, नमो नमः भी नहीं बोलूंगी. या अस्मिता बोल दो. हाँ मैडम, मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरी एक बात मुझे शेयर करनी है. आपने स्टार्टिंग में बताया था गंगा उपनिषद के बारे में. वो सीरीज मैंने उस वक्त देख ली और उसके बाद अभी भी मैं देख रही हूँ. तो अब देख रही हूँ ना, तो वो इतना अच्छा लग रहा है वो देखने में, मतलब सुनने में, और बहुत मजा आ रहा है क्योंकि अब उसके अर्थ अच्छे से समझ में आ रहे हैं. True, true. Please see the whole थैंक series. यू मैम. Yeah, हाँ. I must say thanks to my other people, जो लोग मेरे लिए रिकॉर्ड करके रखते थे. तब मेरे घर पे टीवी होता ही नहीं है कभी भी, और होता है तो हम लोग चालू नहीं करते. लेकिन तब तो बिल्कुल टीवी नहीं था मेरे पास, मैं रखती ही नहीं थी. तो वो मेरे लिए रिकॉर्ड करके रखते थे. मैं उनके घर जाती थी, मंडे को हमारा म्यूजिक का क्लास होता था और खास बैठ करके देखते थे. और तब से मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि वो उस वक्त क्या है, फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो नोट्स नहीं डाउनलोड कर सकते हैं. करेक्ट, बहुत करना था. नोट्स नहीं लिख सकते हैं वो श्लोक वगैरह. और फिर कोविड में तो इतना चांस मिला, और फिर मैंने किसी को गिफ्ट किया था, पूरा सेट मिलता है वो चिन्मया मिशन से, सीडी का सेट. तो मैंने किसी और को गिफ्ट किया था, फिर मैंने मेरे लिए खरीदा. एंड देन बहुत दफे देखने के बाद में मैंने अपने हैंडराइटिंग में लिखे डायलॉग्स. इतने अच्छे, मतलब इतने क्लियर उसमें कंसेप्ट्स है कि बात मत पूछो. और इंफॉर्मेटिव भी है. वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, वेरी टू द पॉइंट, नाइसली पुट इट. सो आराम से बैठने का, शांति से देखने का, जरूरत लगे तो होल्ड करके, वो स्टॉप करके डायलॉग लिख लेने का. मैंने भी देखा है बहुत सारा एपिसोड्स, है ना. वेरी गुड. और वो नीचे आता भी है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है. यू कैन चूज इट. करेक्ट. वेरी नाइस. आई एम वेरी हैप्पी. इट्स वेरी इंस्पायरिंग. थैंक यू. ओके, नो मोर क्वेश्चंस नाउ. Namo Namaha. Thank you so much. We'll do one Om and complete the class. Okay? Yes. O short, M long. Inhale.
शांति 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 Have a very divine day and blissful life ahead. Thank you so much. Thank you so Namo much. Namo. Namo Thank you Namaha. so much, Thank you so much, ma'am. ma'am. Namo For the Namaha. revision. Ma'am, thank you so much. Stay for long class of revision. Okay? Thank you, And ma'am. please Namo do Namo. not miss for your purpose, for your own benefit. Okay? Namo Yeah. Namaha. Thank you, ma'am. All the best for your project. Namo Namaha. Thank you, Bolo ma'am. Sneha. Thank you, ma'am. Namo Thank you, Namaha. ma'am. Namo Namaha, ma'am. Thank you so much. Namo Namaha. Yeah, Bolo Sneha. Okay, okay. Namo Namaha. Thank you so much. Namo Namaha. मैंने कहीं पर्सनल में पूछते तो पूछा है मैसेज कर देना.